लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अभी प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? कह रहे we had a prosperous economy. We had a prosperous economy. India was an independent, self-reliant, and a prosperous economy before the advent of the British rule. कह रहे जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे, इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड अ प्रॉस्परस इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन तो काफी टाइम तक रही। Agriculture was the main source of livelihood for most of the people, and it engaged about 2/3 of the population. 2/3 of the total population were employed in the agricultural sector. Is this pre-independence or pre-British rule? Very good. Be careful. अभी बात हो रही है प्री ब्रिटिश रूल, 1757 से भी पहले की बात हो रही है। India was a prosperous economy. It was an agrarian economy. It was well known for handicrafts. India was also known for its handicraft industries in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stone works. Handicraft products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standards of craftsmanship. High standards of craftsmanship. India was well known for its handicrafts. Textile industry in Bengal, muslin, important है, पता होना चाहिए. Muslin, a cloth, a cotton fabric of plain weave, is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, now Bangladesh, especially in places in and around Dhaka, spelled as Dhaka, during the pre-independence period. तो मुस्लिन एक तरीके का क्लॉथ था जो अब क्या इंडिया के पास बचा नहीं। प्री इंडिपेंडेंस तो इंडिया ही था, पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था। ये सब तो पार्टीशन के बाद धीरे धीरे, बांग्लादेश तो और भी बाद में, और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश हो गया। नाउ द पॉइंट इज कि इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक दे हैड। कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। मुस्लिन एक एग्जांपल है, ढकाई मुस्लिन, ढका मतलब ढाका का मुस्लिन, had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile and was exported to Europe, Middle East, and other markets in the 17th. The finest variety of muslin was called Malmal, and foreign travelers also used to refer it to as Malmal Shahi, Malmal Khas, implying it was worn by or fit for the royalty. Just read once, बस पता होना चाहिए कि muslin क्या था, a type of cloth, cotton fabric. Before the British rule, India was a prosperous economy, agrarian economy, well known for its handicrafts. But all this was before the advent of the British rule. However, during the British rule, the economic policies pursued by the colonial government, British government in ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, कॉलोनियल रूल था। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करा, दे वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ब्रिटिशर्स का बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव था, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। वो इंडिया के भले के लिए, इंडिया कोई भी किसी को रूल कर रहा है तो प्रायोरिटी किसको देगा, अपने आप को। वो बोलता नहीं नहीं हम तुम्हें डेवलप करके रखेंगे, तुम बड़े अंडर डेवलप नहीं। वो जो भी कर रहे थे उनके अपने एजेंडास थे, अपने पर्सनल मोटिव्स थे। दे वर मोर कंसर्न विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट than with the development of the Indian economy. Indian economy उनका कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं। Their policies brought a fundamental change in the structure of the Indian economy. Their two-fold strategy, very very important, अभी आगे फिर रिपीट होगा। Two-fold strategy ब्रिटिशर्स की क्या थी, डिस्कस लेटर इन द चैप्टर, आगे आगे, बट क्या थी, टू-फोल्ड पॉलिसी। टू-फोल्ड पॉलिसी मतलब इंडिया को बना दिया मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि उनको खुद अपने लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो पहली एडवांटेज कि आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपसे रॉ मटेरियल बनवा रहे हैं और मनचाहा रेट ले रहे हैं। बेनिफिट, फर्स्ट
बेनिफिट। सेकंड, आपके पास फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, और वो बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट इतने ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देंगे कि आपको किसी और कंट्री से इंपोर्ट करोगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो यू आर फोर्स्ड टू बाय फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो टू फोल्ड इस वजह से इंडिया को एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो खत्म ही कर दिया। इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये अभी बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया टू फोल्ड स्ट्रैटेजी का, आगे जाके डिटेल में आएगा व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, और उसमें क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मीनिंग ऑफ colonialism. Colonialism refers to a system of political and social relations between two countries. India was a colony of the Britishers. वो रूलर, हम उनकी कॉलोनी, of which one is the ruler, तो Britishers थे rulers, and the other is its colony. The ruling country, Great Britain, not only has political control over the colony, but it also determines the economic policies of the dominated country. So during the British rule, policies कौन formulate कर रहे थे? Britishers. In case of India, the unequal relationship between the colony and the ruling country resulted in underdevelopment of India. तो ये भी अलग एक segment है. What was the state of the Indian economy before the advent of the Britishers? और उन्होंने फिर क्या किया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया है। साथ ही कर लेते हैं इसके लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, द इकोनॉमिक कंडीशन, चलो